শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা 66 তাৎপর্যের মাঝখান থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি 5.66 পারপোর্ট সেন্টার অনওয়ার্ডস, মিডল অনওয়ার্ডস। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন চিৎ জগতের আদি কারণ এবং তিনি জড় সৃষ্টির আচ্ছাদিত কারণ। তিনি তটস্থা শক্তি জীবেরও আদি কারণ। তিনি তটস্থা শক্তি নামক জীবের পরিচালক ও প্রতিপালক। एक एक सेंटेंस नहीं समझ में नहीं से कोई भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, गूगल हाथ रेज करिए, पीछे मत ले जाइएगा। জীব শক্তিকে তটস্থা বলা হয় কেননা তারা পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ শক্তির আশ্রয়ে সক্রিয় হতে পারে অথবা জড়শক্তির আবরণে আচ্ছাদিত থাকতে পারে। চিৎ শক্তির প্রভাবে আমরা বুঝতে পারি যে স্বাতন্ত্র একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই রয়েছে, যিনি চার অচিন্ত শক্তির প্রভাবে তার ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করতে পারে। একমাত্র इंडिपेंडेंट है ओनली कृष्णा, बाकी सब मोरलेस डिपेंडेंट ऑन हिम। बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये आच्छादित क्यों बोला है? कवर्ड मतलब हम जीव लोगों के लिए। एवं जीव लोगों के लिए आच्छादित। प्लीज गिव मी द सेंटेंस। प्रभु आच्छादित अभी आप बोले हैं ना, इससे पहले भी एक आच्छादित फर्स्ट लाइन में नहीं, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लाइन। नहीं प्रभु, पहले भी एक आच्छादित आया है। फर्स्ट लाइन टॉक्स अबाउट कृष्णा's आच्छादित एंड दिस वन। আচ্ছা, ভগবান চিৎ শক্তির আশ্রয়ে সক্রিয় হতে পারে অথবা জড় শক্তির আবরণে আচ্ছাদিত হতে পারে। তো জীব ক্যান বি ডিপেন্ডিং অন দ্য ইন্টারনাল potency of the Lord or can be covered. আচ্ছাদিত means covered by the external potency of the Lord. Clear? ओके प्रभु, पहले वाला मतलब भगवान के लिए आया आच्छादित। First sentence was referring to Krishna, that তিনি জড় সৃষ্টির আচ্ছাদিত কারণ। হি ইজ দ্য কাভার্ড রিজন ফর জড়শক্তি। বিকজ জড়শক্তির কারণ তো দেখে প্রকৃতি মনে হয়, ইয়া পুরুষ অবতার মনে হতে পারে, নারায়ণ মনে হতে পারে। সো ডাইরেক্টলি হি ইজ নট ইন্টারফিয়ারিং ইন দ্য এক্সটার্নাল এনার্জি। ওকে ओके নেক্সট প্যারা। পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম পুণ্য এবং জীবসমূহ সেই পরম পুণ্যের অংশ বিশেষ। পরমেশ্বর ভগবান ও জীবের মধ্যে এই সম্পর্ক নিত্য। ভ্রান্তিবশত কারণ মনে করা উচিত নয় যে চিন্ময় পুণ্যকে জড়শক্তির দ্বারা খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত করা যায়। यानी हम लोग तो भगवान के अंश है, हम लोग भगवान को टुकड़ा टुकड़ा करके इतना जीव बना है, ऐसा नहीं है। भगवान से निकला हुआ है लेकिन भगवान फिर भी 100% टोटो है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम् एक्सेट्रा। এই মায়াবাদী মতবাদকে ভগবদ গীতায় স্বীকার করা হয়নি। পক্ষান্তরে ভগবদ গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে অনুসদৃশ জীব পরমেশ্বর ভগবানের অংশ রূপে চিরকালই তার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে। অংশ যেমন কখনো পুণ্যের সমান হতে পারে না, তেমনি চিন্ময় পুণ্যে অতি ক্ষুদ্র অংশ হওয়ার ফলে জীব কখনোই পরম পুণ্য পরমেশ্বর ভগবান সমান হতে পারে না। ভগবান পুণ্য ও জীব তার অংশ হওয়ার ফলে জীব ও ভগবান যদিও গুণাগতভাবে এক, কিন্তু আয়তনগতভাবে পুণ্য ও অংশ সমান হতে পারে না। ক্লিয়ার? কোয়ালিটেটিভলি ছোটা বড়া है। জীব গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক হলেও আপেক্ষিকভাবে অবস্থিত। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর নিয়ন্তা, কিন্তু জীব সর্বদাই ভগবানের পরা প্রকৃতির দ্বারা অথবা জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। তাই জীব কখনোই জড়া জগৎ অথবা চিৎ জগতের নিয়ন্তা হতে পারে না। জীব তার স্বরূপে সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের অধীন।
কেউ যখন সেই অবস্থা স্বীকার করে নেয় তখনই তার জীবন পূর্ণ হয় উঠে, কিন্তু যখন সে নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে তখন সে বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়। यहाँ तात्पर्य समाप्त। एनी क्वेश्चन? अगला श्लोक 67। অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ अगण्य अनंत जत अंड सन्निवेश ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রকাশ। तत्रूपे पुरुष करे सभाते प्रकाश। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পুরুষ প্রবেশ করেন। कौन सा पुरुष का बात किया जा रहा है? कारणोदर्शाई हर एक ब्रह्मांड में कारणोदक्षाय विष्णु प्रवेश करता है। गर्भोदक्षाय। ऑब्वियसली गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल रहा है। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु घुस रहा है, उनका नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहा है। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পুরুষ প্রবেশ করেন, যতগুলি ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ততরূপে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। আগলা শ্লোক। পুরুষ না সাথে যবে বাহিরায় শ্বাস पुरुष नाशाते जबे बाहिराई श्वास निश्वास सहित হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ। निश्वास सहित है यह ब्रह्मांड प्रकाश। अभी कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु पुरुष যখন শ্বাস ত্যাগ করেন, এক্সহেল করতে हैं, তখন তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হয়। ठीक है? और जब सांस लेते हैं तो प्रलय हो जाता है, सब अंदर चला जाता है। पुनरुपि श्वास जबे प्रवेशे अंतरे पुनरपि श्वास जबे प्रवेश अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीरे। श्वास स ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीरे। তারপর তিনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন মানে ইনহেল করেন, তখন তার প্রশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পুনরায় তার শরীরে প্রবেশ করেন। কারণোদক্ষায় বিষ্ণু ভগবান তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা প্রকৃতির গর্ভ সঞ্চার করেন। তাৎপর্য পরামর্শ। সেই দৃষ্টিপাতের চিন্ময় অণুগুলি হচ্ছে আত্মা বা চিৎকণা, যার পূর্বকল্পে তাদের স্ব কর্ম অনুসারে বিভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। ভগবান স্বয়ং তার অংশ প্রকাশের দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভদক্ষায় বিষ্ণু রূপে প্রবিষ্ট হন। ভগবদ্গীতায় আকাশের সঙ্গে বায়ুর তুলনা করার মাধ্যমে মায়ার সঙ্গে ভগবানের সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। হ্যাঁ, ভগবদ্গীতায় আকাশের সঙ্গে বায়ুর তুলনা করার মাধ্যমে। আকাশ সমস্ত জড় বস্তুতে প্রবিষ্ট হলেও তা আমাদের থেকে অনেক দূর। प्रभु जी इसको थोड़ा समझाइए, इस 2 लाइन को। तो आसमान पूरा, अगर सोचिए हम लोग का जो आसमान है, स्काई जो है, पूरा ब्रह्मांड को कवर कर रहा है, लेकिन क्या हमारे पास है? नहीं। उसी तरह भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहा है गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में। लेकिन भगवान को, गर्भोदक्षाय विष्णु को आप लोग ने कौन कौन देखा है? एक ही जन हाँ बोल रहे, किसी ने नहीं। किसने नहीं देखा। अगला श्लोक 70। गवाक्षेरो रौद्रे जनो। यस पंकज प्रभु। अगर ये जो आकाश वाला जो बताया उसमें वो उदाहरण आता है ना, वो जो घड़े में बोल सकते कि आकाश है, लेकिन वो नहीं, वही वाला एग्जांपल आता है ना। ये वाला कंपैरिजन एयर एंड आकाश स्काई वाला समस्त जड़ वस्तुते प्रविष्ट होलेও, तो जैसे भगवान हर एक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो रहा है गर्भोदक्षाय रूप में, सिमिलरली आकाश समस्त वस्तुते प्रविष्ट होलेও, बिकॉज हम लोग ऊपर देखें तो कवर, यहाँ भी हम कवर है आकाश से। अभी अमेरिका में कोई बैठा है वो भी आसमान देखो, वही आकाश से कवर्ड है, सो इट इज ऑल परवेडिंग। তা হলেও আমাদের থেকে অনেক দূরে। গবাক্ষেরো রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। गवाक्षेर रंधे जने तसरेलु चले। পুরুষেরও লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডেরও জালে। पुरुषेर रोम कूपे ब्रह्मांडेर जाले। গবাক্ষের রন্ধ্র দিয়ে যেমন অনুসদৃশ ধূলিকণা যাতায়াত করে,
তেমনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের জাল পুরুষের রোমকূপ দিয়ে গমনাগমন করে। ইংলিশ। Just as atomic particles of dust pass through the openings of a window, so the networks of universes pass through the pores of the skin of the Purushas. ठीक है, तो महाविष्णु के लोम से इतना कोटि कोटि ब्रह्मांड हर एक समय निकल रहा है। किस तरह? जिस तरह खिड़की खोलने से सुबह सुबह सूर्य के रोशनी में जो डॉट 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 कोटि कोटि धूल कणा निकल रहा है, वैसे। यस, बोलिए माता जी। জি গবাক্ষ মানে তাহলে জানলা জানলা বলছেন? গবাক্ষরে রন্ধ্র দিয়ে, জানলার ছিদ্র দিয়ে, হ্যাঁ, রন্ধ্র ছিদ্র ফাঁকা দিয়ে। अभी इसी के बारे में कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं। कहां से? ब्रह्म संहिता से। यस्यैकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य यशेक निश्वसितं कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महन् स इह यस्य कला विशेषो विष्णु महास इह्यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो श्लोका 69 में जो एक लाइन है ना, हिज कमिंग इन कांटेक्ट क्यों पीछे ले जा रहे हैं? इसको बंद करिए। लेट्स गो अहेड। व्हाई कीप ऑन आस्किंग एनी क्वेश्चन चुपचाप। फिर अभी 71 में आ गया, अभी 69 में ले जा रहे हैं। ओके। অনুবাদ। ব্রহ্মা ও জগতের অন্যান্য পতিগণ যার লোমকূপ থেকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তার এক নিঃশ্বাস কাল পর্যন্ত জীবিত থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যার অংশের অংশ, সেই आदि पुरुष गोविंद के আমি भजना करी। तो महाविष्णु का वन एक्सेल माने ब्रह्मा का एक लाइफ हो गया 100 साल। यहाँ लिखा है ना, एक निश्वास काल पर्यंत जीवित থাকেন, মানে पूरा ब्रह्मांड खत्म। एक बार इनहेल एक्सेल, एक ब्रह्मांड निकला, अंदर गया, खत्म। ब्रह्मा जी का 100 साल हो गया। क्लियर? তাৎপর্য, ভগবানের সৃষ্টি শক্তি এই বর্ণনাটি ব্রহ্ম সংহিতা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, যা ব্রহ্মা স্বয়ং ভগবানকে উপলব্ধি করার পর রচনা করেছেন। মহাবিষ্ণু যখন শ্বাস ত্যাগ করেন তখন ব্রহ্মাণ্ডের চিন্ময় বীজ তার रोमकूप থেকে निर्गत হয়। মানে एक्सेल और इनहेल के बीच में जो टाइम है वही 100 साल। আধুনিক পারমাণবিক গবেষণার যুগে পারমাণবিক বৈজ্ঞানিকেরা হয়তো এই তথ্যটি থেকে অত্যন্ত একটু আভাস পাবেন যে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত চিন্ময় পরমাণু থেকে কিভাবে এক একটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় এবং তা নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। बोले कि जिस तरह मनुष्य का हमारे जीव का आयु कमते जा रहा है, उस तरह क्या ब्रह्मा का भी जा रहा है? हाँ, मतलब फिक्स तो नहीं है ना। प्रश्न क्या है? तो क्या ब्रह्मा का भी आयु 100 साल से कम हुआ है ना, कि सेम है, वही है? ब्रह्मा का आयु 100 साल फिक्स है। वही कुछ फिक्स है। ब्रह्मा सिर्फ जीव नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर भी है, अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। ठीक। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ हिंदी में बताया गया कि जो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक बीज अणुओं जैसे कणों के रूप में उनसे प्रकट होते हैं। ये कण परमाणु के आकार से 3 गुने होते हैं। बंगला में तो ये चीज नहीं बताया ना, 3 times of the atom। এবং তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে না, ये तो लिखा नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखा है? 3 times atom क्या बोल रहा है प्रभु? हाँ, इंग्लिश में है, when Mahavishnu exhales, the spiritual seeds of the universes emanate from him in the form of molecular particles
like those that are visible 3 times the size of an atom. When sunlight is diffused through a small hole, uh, in these days of atomic research, it will be a worthwhile. वो तो आपने पढ़ा, लेकिन this is what it is written here. Okay, just hold on, please. Spiritual seeds of universes emanate from him in the form of molecular particles like those which are visible 3 times the size of an atom. When sunlight is हरे कृष्णा diffused दयालु through a प्रणाम small प्रभु। hole. प्रभु चैतन्य चरितामृतम आदि लीला पंचम परिच्छेद श्लोक संख्या 71 तात्पर्ये 3 टाइम्स পার্ট অফ পার্টিকলস না 3 টাইমস কিছু একটা দেওয়া আছে ইংরেজি ভাষায় তাৎপর্যে, কিন্তু বাংলায় সেটা মিসিং। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। यस हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो बोल रहा है कि जो जानला जाए है खिड़की उस समझ गया क्या बोल रहे हैं, तो समझ गया। धूलि कोना 3 गुण होता है परमाणु का, ठीक है, वो तो समझ गया। लेकिन यहाँ नहीं है, उसीलिए मैं सौदाम दत्तों को भेज दिया, बीबीटी वाले। ओके, अगला श्लोक। इसमें कोई किसी का प्रश्न है तो बोलिए। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? अच्छा, 72 नंबर श्लोक। ये क्या ट्यून होगा? क्वाहं तमो महदहं खच्चरांगिवर्भू, क्वाहं तमो महदहं खच्चराग्निवाग्भू, संवेष्टितण्डघत सप्तवितष्टिकाया, संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकाय, वेदृग्विधा विगणिताण्डपरानुचार्य, वेदिग्विधा विगणिताण्डपरानुचर्या, वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्, वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्। भागवतम का श्लोक है 10.14.15। ये कब ये श्लोक बोला? श्री कृष्णের গোবৎস এবং গোপ সখাদের হরণ করার পর ব্রহ্মা ফিরে এসে যখন দেখলেন গোবৎস এবং গোপ বালকেরা তখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন তিনি তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে এভাবেই ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন भागवतम में। ठीक है, ये ब्रह्मा जी कीर्तन कर रहा है, वापस आकर देखा, अरे वाह, जैसा था वैसे ही है वो ब्रह्म लीला में। ठीक है, क्या बोला ब्रह्मा जी, क्या बोल रहे हैं? প্রকৃতি মহৎ তত্ত্ব অহংকার ও পঞ্চভূত নির্মিত আমার হাতের মাপের 7 বিঘত দীর্ঘের এই দেহের অন্তর্গত আমি বা কোথায়? আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু রূপে যার লোম বিবরে পরিভ্রমণ করে, সেই রকম যে আপনি, সেই আপনার মহিমাই বা কোথায়? অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ আপনার মহিমার তুলনায় কিছুই নয়। अनुवाद फिर से पढ़ते। प्रकृति महत्तत्व अहंकार ও পঞ্চভূত নির্মিত আমার হাতের মাপের 7 বিঘত দীর্ঘ এই দেহের অন্তর্গত বা আমি কোথায়? इंग्लिश अनुवाद। Where am I? A small creature of 7 spans, the measure of my own hand. I am enclosed in the universe composed of material nature, the total material 7 hands energy. वाला समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। Where am I? A small creature of 7 spans, the measure of my own hand. यस, इंद्राणी माता जी। তো যে হাতে মাপি না 7 বিঘাত, সেইটা বলছে ওনার হাতের 7 বিঘাত কি? পুরোটা বলুন, পুরো সেন্টেন্সটা বলুন। 7 বিঘা কি? পুরো বোঝাতে হবে জিনিসটা। তোমরা বলছেন আমার হাতের মাপ 7 বিঘাত দীর্ঘ এই দেহের অন্তর্গত আমি বা কোথায়? এই যে দেহটা তার হচ্ছে তার মাপ হচ্ছে 7 বিঘাত, হাত ওনার হাতের 7 বিঘাত দৈর্ঘ্য। 7 বিঘা, সুন্দর। यस, মানে হাতে মাপি না আমরা 7 বিঘাত বলি, এইভাবে 1 বিঘাত 2 বিঘাত করে মাপি না। हाँ प्रभु,
हरे कृष्णा हाँ, ये जो आप- चाकर है हाथेर चाकर है ना हाँ, ये distinction समझ गया। हाँ इसका इसका 7 गुण हम लोग का भी बॉडी आप बीघा क्यों बोल रहे हैं फिर? हाँ प्रभु बीघा क्यों बोल रहे हैं माता जी? 7 गुण आई अंडरस्टैंड 7 टाइम्स। हाँ हाँ और ये जो चाकर हम लोग बोलते हैं कि चाकर चाकर माता जी 7 बीघा क्या ना बोलছিলেন? इसको ওইটা बित्ता बोलते हैं एक हिंदी सेकंड में। उनको उत्तर देने दीजिए। हाँ, মাতাজি কেন বলেছে জানি না বলছেন একবার চুপ করে আছেন। ইন্দ্রাণী মাতা জি 7 বিঘা কেন বলছিলেন? বিঘাত বিঘা না বিঘাত বলি আমরা হাতে যখন মাপি এই বুড়ো আঙুল থেকে মাঝের আঙুলটার মাথা অবধি এক এক বিঘাত মাপি না। बिगात, ओके। হ্যাঁ तो ये क्या होता है? 7 बिघा 7 टाइम्स क्या होता है? एक व्यक्ति का हाइट होता है क्या? यस यस यस। अच्छा, कभी देखा नहीं। ये सबके लिए कॉमन है, सब नाप के देख सकते हैं। ठीक है। मोरलेस तो अपने हाथ से दूसरे के हाथ से नहीं होगा। कलयुग में आएंगे 7 बित्ता वाले, इससे भी छोटे होंगे कलयुग में भी। अच्छा, ओके। तो ब्रह्मा जी अपने आप को बहुत नगण्य समझ रहा है कि इतना बड़ा सृष्टि में मैं क्या इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति हूँ। वही तात्पर्य के आगे लिखा है, বদ্ধজীব এমন কি সে যদি ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালক ব্রহ্মার মতো মহৎ ও হয়, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই নেই। কেননা ভগবান তার দেহের রোমকূপ থেকে নির্গত চিন্ময় রশ্মির দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে পারেন। জড় বৈজ্ঞানিকদের উচিত ভগবানের তুলনায় আমাদের নগণ্যতা সম্বন্ধে ব্রহ্মা যা বলছে সেই সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করা। উই শুড অ্যাকসেপ্ট। ক্ষমতার গর্বিত মানুষদের ব্রহ্মা এই প্রার্থনা থেকে অনেক কিছু জানবার আছে। अगर कोई बहुत अहंकारी हो गया तो उनको ये श्लोक समझना चाहिए। अगला श्लोक 73, अंशेर अंश जेई कला तार नाम गोविंद। अंश जय कला तार नाम। क्या बोलते हैं, भावा जाता है, कहाँ चले जाते हैं? अब क्या सोते रहते हैं क्या क्लास में? कभी बोलता है, कभी नहीं बोलता है, कभी दूसरा कोई करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। ओ हरे कत कष्ट। শ্লোকার্থ, অংশের অংশকে বলা হয় কলা। শ্রী বলরাম হচ্ছেন গোবিন্দের প্রতিমূর্তি। अच्छा, अंशेर अंश के कला बोला, ये तो सबको मालूम है ना। अच्छा, और नेक्स्ट सेंटेंस बोले श्री बलराम होच्छेन गोविंदेर प्रतिमूर्ति, माने एकदम एज इट इज ना, माने भगवान कृष्ण का बलराम एकदम फर्स्ट एक्सपेंशन, एकदम एज गुड एज बलराम। इंग्लिश में क्या लिखा है प्रतिमूर्ति का, करुणा राधे माता जी? A part of a whole is called Kala. Sri Balram is the counter form of Lord Govinda. काउंटर फॉर्म माने काउंटर, जैसे काउंटर पार्ट होता है ना, एज गुड एज कृष्ण बलराम, माने दूसरा रूप ना क्या प्रभु? दूसरा रूप ही जैसा है। करेक्ट। यस पंकज प्रभु। तो देन आल्सो 64 गुणस। नहीं वो कहाँ है? प्रतिरूप है ना, सेम। अरे रे 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 रे, वो एक्स्ट्रा चीज मत लाइए उसको। अगला श्लोक 74, तारो एक स्वरूप श्री महासंकर्षण। जहाँ के प्रभु आप दूसरा चीज में आ गए क्या? एक मिनट। क्या हाँ, तार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण। तारो अंश पुरुष है कलाते गणन। तार अंश पुरुष है कलाते गहन। ये तो हम लोग को मालूम है। बलराम जी एक्सपैंड हिमसेल्फ इन 5 महासंकर्षण, 3 पुरुष अवतार, अनंत शेष। आया था आगे भी, याद होगा आप लोगों को। বলরামের একটি স্বরূপ হচ্ছেন শ্রী মহাসংকর্ষণ এবং তার এক অংশ পুরুষ অবতারকে কলা বা অংশের অংশ বলে গণনা করা হয়। क्लियर? हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब तो इसके पिछला श्लोक है कि बलराम जी को अंश नहीं बोल सकते है ना? नहीं, काउंटर पार्ट इज एज गुड एज, माने जस्ट काउंटर पार्ट, एक्सपेंशन बोल सकते हैं, एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन, बट एज गुड एज कृष्णा बलराम। लुक वो 64 वाला मत लाइए, फिर वो कोई पूछेगा फिर जो एक्स्ट्रा है वेणुधारी वो सब कहाँ है बलराम जी का, तो उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए जहाँ लिखा नहीं वो। इसके बारे में एक बार डिस्कशन हुआ था प्रभु जी का क्लास में। डिस्कशन हो क्या? यही हुआ था प्रभु जी का क्लास में? क्या बताते प्रभु जी? हाँ, वो बोले थे कि होता है। क्या होता है?
बोले उनका भी है वेणु, और ये क्या नाम, ये जो कलाएं हैं वेणु और ये वेणु माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी हाँ, बलराम जी के उनका लिए भी भी है लेकिन उतना प्रकाशित नहीं है। ही ऑल्सो, ऐसा एक बार बताए थे वो। ओके, अगला श्लोक 75। जहाँ के तो कला को ही तिहो महाविष्णु, जहाँ के तो कला कही तिहो महाविष्णु, महापुरुष अवतारी तेहो सर्व जिष्णु। महापुरुष अवतारी तेहो सर्व जिष्णु। যাকে আমরা কলা বলি তিনি হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, অংশের অংশকে কলা বলা হয়। তিনি হচ্ছেন মহাপুরুষ, যিনি অন্য সমস্ত পুरुषেर উৎস এবং সর্বব্যাপ্ত। तो ये तो हम लोग को मालूम है कि जो कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु है वो दूसरे पुरुष अवतारों का सोर्स है ना। जैसे कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु है। तो सोर्स कौन है मेन? महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु। क्लियर? करुणा राधे माता जी। अगला श्लोक 76। गर्भोद क्षीरोद शाई दोहे पुरुष नाम, गर्भोद क्षीरोदशाई दोहे पुरुष नाम, সেই দুই যার অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম। সেই দুই যার অংশ বিষ্ণু বিশ্বধাম। गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय उभयই বলা হয় পুরুষ। তো ये भी पुरुष अवतार है, करेक्ट। তারা হচ্ছেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়। প্রথম পুরুষ অবতার কারণোদক্ষায় বিষ্ণুর অংশ। क्लियर? हाँ प्रभु, माता जी बोलिए। अरे क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हैं? म्यूट, आप म्यूट में है। मैं कहाँ म्यूट में हूँ? वो तो माता जी का आवाज नहीं है। माता जी म्यूट में है प्रभु जी। लॉग आउट करके लॉग इन करिए, साउंड नहीं आ रहा है। ओके, तात्पर्य পুরুষের লক্ষণ লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। শায়দ রূপ গোস্বামী দ্বারা লিখিত। পুরুষের লক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের অবতারদের বর্ণনা করার সময় গ্রন্থাকার মানে কবিরাজ গোস্বামী বিষ্ণু পুরাণ থেকে উদ্ধৃত দিয়ে বলেছেন, আমি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সর্বদাই জড়জগতের দ্বৈত ভাব সমন্বিত ছয়টি সমস্ত কলুষ থেকে সর্বতভাবে মুক্ত, মানে কাম ক্রোধ লোভ এক্সেট্রা, যার অংশ প্রকাশ মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাতের দ্বারা জড়জগৎকে প্রকাশিত করেন। यस, इंद्रा सती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक जनरल क्वेश्चन आया मन में कि ये जो ये भागवतम में भी है या सिर्फ चैतन्य चरितामृत में ही है कि तीनों विष्णु और ये सारा एक्सपेंशन जो है, तो प्रभु ये सारे ग्रंथों में मिलता है या सिर्फ इसमें चैतन्य चरित? हाँ, पुराणों में मिलता है, बहुत जगह मिलता है कि ये पुरुष अवतार बलराम जी का एक्सपेंशन कला ये सब बहुत जगह में मिलता है, बहुत जगह है, इतना जगह। अभी तो ये इसी में बोले, विष्णु पुराण से कोट कर रहे हैं। तो प्रभु इसको क्यों रिपीट कर रहे हैं फिर चैतन्य चरितामृत में, ऐसे क्यों प्रूफ रिपीटेशन? कराने के लिए बार बार कविराज गोस्वामी, इधर प्रभुपाद जी लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल तात्पर्य, कविराज गोस्वामी तात्पर्य में नहीं लिखा है। अभी हम लोग तात्पर्य पढ़ रहे हैं, लेकिन कविराज गोस्वामी का मैंने उस दिन भी बताया था स्टाइल क्या है। देखिए, ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बताइए खुद, आपको मालूम था इस्कॉन में आने के आगे महाप्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु कौन है? हमको भी मालूम नहीं था। तो माय पॉइंट इज, लेकिन कृष्ण बलराम कौन है वो तो थोड़ा थोड़ा मालूम था ना। हाँ, लोग कृष्ण बलराम को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसीलिए पहले कृष्ण तत्व बताया, अब पिछले अध्याय में अब देखे होंगे, और फिर बताया वही कृष्ण अवतारी महाप्रभु रूप में आए हैं। सिमिलरली वैसे ही पहले बलराम जी का आप देखेंगे, बहुत बलराम जी का स्तुति किया और बताया कि कृष्ण भगवान ही अपने आप को बलराम जी में फर्स्ट एक्सपैंड करते हैं, कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, ये सब बोला। फिर बलराम जी कैसे किस तरह अलग अलग प्रकाश करते हैं 5 रूप में, वो भी बोला। और फिर क्या बोला? ये नित्यानंद प्रभु है,
ये बलराम जी तो प्रूफ करने के लिए प्रभुपाद ये बार बार बता रहे बात बोल रहे हैं, कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। यस, हैं। ठीक है, थैंक यू। अभी सोचिए आप क्या बोले अभी आप जिनके बारे में सुनने जाएंगे पूरा और मोटा मोटा 3 ठो बुक, लेकिन पहले उनको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे आप मन ही मन में कि वो भगवान है, तो भगवान का लीला तो हजम ही नहीं होगा, आने वाले दिनों में तो हजम ही नहीं होगा ना। उसीलिए पहले आप प्रूफ करना जरूरी है कि ये व्यक्ति भगवान है। फिर आने वाले 2-3 मोटा मोटा बुक है, आदि लीला, मंदवादी लीला, अंतर लीला, तो बोलेगा कि इनका लीला। पहले भगवान ही उनको अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो उनका लीला क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे? यस पंकज प्रभु, वो क्लास 7 बजे। हाँ ठीक है, 10 मिनट और कराएंगे। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द हिम एज गॉड, बोथ महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। आगे तात्पर्य में, যিনি নিজেকে বিভিন্ন চিন্ময় রূপে প্রকাশিত করেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতিটি রূপেই এক এবং অভিন্ন, যিনি সমস্ত জীবের অধীশ্বর, যিনি সর্ব অবস্থাতেই জড়া প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত, তিনি যখন এই জড়জগতে আবির্ভূত হন তখন তাকে আমাদেরই মতো একজন বলে মনে হলেও তার চিন্ময় রূপ নিত্য আনন্দময়। এই বর্ণনার সার সংকলন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী সিদ্ধান্ত করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবান যে অংশ প্রকাশ জড়া প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করেন তিনি হচ্ছেন পুরুষ। ओके, तो भगवान पुरुष है और प्रकृति स्त्री है। ये भगवत गीता का क्षेत्र के उसमें भी बहुत अच्छा से प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, पुरुष और प्रकृति के मिलन से ये जड़ जगत सृष्टि होता है, एक्सेट्रा। अगला श्लोक 77 वाला श्लोक भी लघु भागवतामृत से लिया गया है। कविराज गोस्वामी क्यों यहाँ वहां से ले रहे हैं? इंदिरा सखी माता जी प्रूफ करने के लिए, देखो इसमें भी लिखा है, देखो इसमें भी लिखा है। अगला श्लोक 77। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी यहाँ पे मतलब पुरुष अवतार इसलिए भी बोला गया है क्योंकि वो जड़ जगत के साथ कंसर्न्ड है, कुछ क्रिएशन। हाँ करेक्ट, प्रकृति पुरुष, स्त्री पुरुष। 77 विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु पुरुषाख्यान्यथो विदु एकं तु महता सृष्टि एकं तु महतश्रेष्ठ द्वितीयं त्वदण्ड संस्थितम् द्वितीयं त्वण्ड संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। এই শ্লোকটি লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত সাতত্ব তন্ত্রের একটি শ্লোক। ठीक है, इंदिरा सखी माता जी देखिए, सातत्व तंत्र एक श्लोक लेकर कोट कर रहा कविराज गोस्वामी। अनुवाद, नित्यधामे विष्णुर 3টি রূপকে বলা হয় পুরুষ। प्रथम महत् तत्त्वेर स्रष्टा कारणदक्षाय विष्णु महाविष्णु, द्वितीय गर्भदक्षाय विष्णु, देखिए पूरा एकदम क्लियर नाम वाम सब कुछ दिया हुआ है, যিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করেন, এবং তৃতীয়টি ক্ষীরদক্ষায় বিষ্ণু, যিনি প্রতিটি জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। এই 3টি তত্ত্ব জানতে পারলে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। हरि बोल हरि बोल। कौन कौन समझ में आया 3 तत्व? सबको समझ में आया ना? चलिए ये अच्छा गुड न्यूज है थोड़ा। तो मुझे पूरा क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे ना, नाम दे देके तो बहुत सुंदर से बैठा है। चलिए फिर आपका भी जड़ जगत बंधन से मुक्त हो गया। अगला श्लोक 78। यद्यपि कहिए तारे कृष्णेरो कला करी यद्यपि कहिए तारे कृष्णेर कला करी मत्स्य कूर्मादेव अवतारेर तिह अवतारी मत्स्य कुमादि अवतारे तिह अवतारी। যদিও কারণদক্ষায় বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণের কলা বলে হয়, তবুও তিনি হচ্ছেন মৎস্য কূর্ম ও অন্যান্য অবতারদের অবতারী। अभी ये नया चीज सीख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। ये आगे भी एक्चुअली सुमना गौरंगी माता जी भी 2-3 बार बताई थी क्लास में, मुझे याद है
कि ये जो कर्णदक्ष विष्णु, ये जो पहला पुरुष अवतार, इनसे बाकी अवतार भी आता है। बोला था ना, ये डिस्कस किया था क्लास में, जितना भगवान का अवतार होता है सब वहीं से निकलता है, पहला पुरुष अवतार से, यानी महाविष्णु या कर्णदक्ष विष्णु से। अगला कौन सा प्रभु, थोड़ा एग्जांपल दिए, कौन सा? जो यही तो श्लोक में दिया है, मत्स्य आदि, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ठीक है। अच्छा, यस पंकज प्रभु। प्रभु यहाँ पे जो सीखी जाए कि भगवान से संकर्षण से फिर पुरुष अवतार, और ये जो उसके बाद में पुरुष अवतार में कर्णोदक्षाई से जो भगवान के अन्य अवतार, इसमें नारायण का तो ये नहीं आया, नारायण की कर्णोदक्षाई से होंगे या नहीं, नारायण तो इज देयर इन वैकुंठा, फिक्स। नारायण इज देयर। आपको याद होगा पहला चतुर्व्यूह का जो संकर्षण है उससे नारायण निकलता है। हाँ वही, वो यहाँ पे मेंशन नहीं आया ना, उसको अवतार कैसे बोल सकता है? फिक्स है, नारायण को अवतार नहीं बोल सकते, परमानेंट मेंबर है, रेसिडेंट। ये अवतार एक लाइक दीज आर, वो इवेंट होके फिर वापस चला जाता है। नारायण इज फिक्स देयर इन वैकुंठा। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये मत्स्य अवतार जैसा है। ये मत्स्य अवतार हुआ, लीला किया, वैकुंठ चला गया अपना प्लेनेट में, करेक्ट। मत्स्य लोक होगा कुछ, वैकुंठ में एक मत्स्य लोक होगा, उसमें चला गया। वैसे कूर्म अवतार हुआ, अवतार लिया, लीला किया, समुद्र मंथन में चला गया वैकुंठ में, अपना कूर्म लोक भी होगा कुछ वैकुंठ में। लेकिन नारायण तो इज देयर ऑल द टाइम इन वैकुंठा। यस अशोक प्रभु। अरे कि अभी तक तो हम लोग ने यही देखा कि भगवान स्वयं रूप बदल के इस अवतार में आए हैं। रूप बदल के, रूप बदल के ऐसा मत बोलिए, बोलिए रूप धारण करके आया है। हाँ, रूप धारण करके, दोनों में अंतर है। अच्छा। हाँ बोलिए, आगे बोलिए। तो ये भगवान न हो करके पुरुष अवतार कैसे हुए? अरे भगवान ये सब में झमेला में नहीं पड़ता है, अवतार। भगवान कृष्ण जो है वो गोलोक वृंदावन में गाय चराते हैं, रासलीला करते हैं, वो इसमें ये सब झमेला में नहीं पड़ता है। ये सब अलग अलग। अरे उधर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को ऐसे ऐसे वरदान दे दिया, अभी अवतार लेना पड़ेगा नरसिंह रूप में। वो सब थोड़ी कृष्ण भगवान जो गोलोक वृंदावन में वो सब हेडेक लेंगे एकदम। ये पुरुष अवतार से होगा। पुरुष अवतार देखेगा, अरे नहीं, अभी हमको ऐसा एक रूप धारण करना है जो पशु भी नहीं और मनुष्य भी नहीं, और क्या दांतों से नहीं मारेगा, नाखून से मारेगा, क्या क्या उतना क्राइटेरिया, सब पूरा क्राइटेरिया फिल करके एक रूप लेना है। तो ये सब कौन देखेगा? ये सब थोड़ी कृष्ण देखेगा, कभी नहीं। ये सब महाविष्णु का काम है, महाविष्णु का काम है, यही बता रहे हैं। तो स्वयं आते हैं महाविष्णु, उनसे सब अवतार आता है। फॉर द टाइम में स्वयं महाविष्णु आते हैं, नहीं आते हैं? ऐसा मत बोलिए, महाविष्णु से ये अवतार निकलता है ये सब। अच्छा, एज पर नीड ऑफ द आवर। अभी बरादेव से फाइटिंग करने के लिए हिरण्याक्ष को भेजो, हिरण्याक्ष का कैसा, सॉरी हिरण्याक्ष से फाइटिंग करने के लिए बरादेव को भेजो, तो पृथ्वी गिर गया है, उनको उठाने के लिए फिर अच्छा ठीक है काम करते हैं, शुक्र अवतार लेते हैं, ठीक है। तो वो कहां से आएगा? वो महाविष्णु। ये सब कृष्ण नहीं देखेगा ये सब झमेला। ये नरेंद्र सर्वचेतन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हम लोग अभी क्लास में बैठा है, जितना मोबाइल है उतना मोबाइल का सबका पास में हम लोग एक आदमी है कि नहीं? ये तो बोधि जगत का है। यस कविता माता जी। यस प्रभु। ये कर्णोदक्षाई को कला कैसे बोला गया, थोड़ा सा बताइए। अच्छा, तो अंश का कला बोला जाता है। बलराम जी का अंश है पहला पुरुष अवतार या दूसरा पुरुष अवतार, उनके अंश हो गया कला, तो क्या गलत है? अंशों को कला बोला जाता है। अच्छा, संकर्षण से आए तो कला उनका अंश। हाँ, अंशों का अंश। तो आई मीन बीच में तो बहुत बार यही हुआ, इससे ये, उससे वो, उससे वो, उसे कला के भी कला बोलिए, सिर्फ पहला वाला अंश बोलिए, उसके बाद जो है सब कला ना। समझ में आया ना? पहला वाला को अंश बोलते हैं, इमीडिएट एक्सपेंशन को अंश बोलते हैं, अंशों को कला बोलते हैं, कला का अंश को कला बोलते हैं, कला का अंश कला ही बोलते हैं सब, ठीक है। सिर्फ पहला वाला अंश, इसके बाद सब बनाना।
यस सत्यभामा माता जी बोलिए। अरे इनका क्या हुआ? हरे अच्छा, कृष्णा। मोबाइल भी प्रभु थक जी गया, मोबाइल भी थक गया। बोलिए माता जी, इंद्र सखी माता जी। प्रभु जी, ये नारायण और विष्णु में क्या फर्क है? मुझे थोड़ा सा ये जनरल क्वेश्चन है, भूल जा रही हूँ। ठीक है, कमिंग टू दैट पॉइंट, कमिंग। यस पंकज नेत्रवजीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो ब्रह्मा जी जब भी मतलब जाते हैं प्रयाग के लिए या हेल्प के लिए, तो वो क्या कारणोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं? नहीं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास, क्षीर सागर। ये जितना भी तो किसी कारणोदक्षाय विष्णु के सब अवतार आते हैं ना, मेरी जैसे आवाज आ जैसे रही है? ब्रह्मा जी प्रयोग करते हैं। नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ये सब क्षीर सागर के तट पे जाके खड़ा रहता है। हाँ, जितने देवी देवता सब उधर। ओके, यस मनीषा माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু, অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা কোয়েশ্চেন ছিল যে বরাহ অবতার, নৃসিংহ অবতার, দিজ আর অংশের অংশ, সো দিজ আর অংশ অবতার, রাইট? नहीं 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 नहीं, अंश अवतार मत बोलिए अभी इसको। अभी अंश अवतार नया कैटेगरी हो जाए, अंश अवतार। These are लीला अवतार, लीला আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ভগবানকে আলাদা আলাদা লীলা, লীলা অবতার। অংশের অংশকে কলা বলা হয়, আমি এটাই বলছিলাম। অংশ মানে इमीडिएट एक्सपेंशन ना। अभी देखिए कितना एक्सपेंशन हुआ, कृष्णा से बलराम, बलराम से पहला चतुर्व्यूह बीएसपीए, बीएसपीए का पहला चतुर्व्यूह का एस से निकला नारायण, नारायण से फिर से निकला दूसरा चतुर्व्यूह, फिर से बीएसपीए, दूसरा चतुर्व्यूह के एस से निकला 3 पुरुष अवतार। तो बहुत अंश 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 बहुत बहुत हो रहा है। इसे सिर्फ पहला वाला एक्सपेंशन को अंश को बोलिए, उसके बाद जितना है सब बनाना, यानी कला। यस करुणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु अभी पंकज प्रभु जो पूछ रहे थे कि जब देवता लोग जाते हैं तो किनसे प्रे करते हैं? क्षीर सागर के तट में जाते हैं देवता, सब ब्रह्मा जी को लेकर जाते हैं, लीडर को, और वहीं तट पर ही रहते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो चतुर्भुज ना फोटो में ब्रह्मांड का। अच्छा, इसका अवस्थान कहाँ है प्रभु? क्षीर सागर जो इंडिविजुअल के अंदर एज परमात्मा रहते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु, हाँ, परमात्मा रूप में जो रहता है। बट परमात्मा रूप में तो लोकलाइज्ड फॉर्म है, बट ही आल्सो इज देयर एज अ चतुर्भुज रूप। ही हैज अ प्लेस क्षीर सागर के तट पर, माने वो तो क्षीर सागर को अंदर में ही रहते हैं शयन करते हुए। बट उन्हीं का एक रूप हम लोग परमात्मा रूप में, हम लोग का सब जीवों के हृदय में विराजमान, जीवों के हृदय में पर्सनलाइज्ड फॉर्म होता है। एक ने रहिलो ग्रंथ अमृत लहरी, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, चैतन्य चरितामृतम की जय, कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।